کوئی گھر کا آدھا مال لے آتا ہے، کوئی تھوڑا سا لے آتا ہے، کوئی زیادہ لے آتا ہے۔ ابو بکر تیری محبت رسول، پیغمبر کے ساتھ تیرا عشق رسول، محبت رسول، الفت رسول، پیغمبر کی جان نثاری، پیغمبر کی وفاداری، پیغمبر کے حکم پر ابو بکر تو کس انداز میں عمل کر رہا ہے۔ ابو بکر گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے چندے کا اعلان کیا ہے، ایک گٹھڑی کے اندر باندھ لیتے ہیں۔ ایک گٹھڑی کے اندر باندھنے کے بعد اس گٹھڑی کو سر پر رکھتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کہیں کوئی سوئی بھی گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے محبوب نے اسلام کی خاطر جو ہے مال کا مانگا ہے، ابو بکر تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ ایک گٹھڑی کے اندر باندھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھتے ہیں جسم پر قیمتی لباس ہے، خوبصورت لباس ہے، کیوں نہ ہو اللہ کے محبوب چندے کا اعلان کریں، ابو بکر کے جسم پر قیمتی لباس ہو۔ ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتے، واپس گھر میں جاتے ہیں، ایک جو ہے ٹاٹ کا لباس سلائی کرتے ہیں، اپنے جو ہے اوپر پہن لیتے ہیں، اپنے قیمتی لباس کو اس گٹھڑی کے اندر باندھ لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہا ہے، اللہ کے محبوب مسکراتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر جو ہے وہ پوچھا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ کیا لے کر آئے ہو؟ کیا گھر والوں کے لیے بھی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آنا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ ہے لے آؤ، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ابو بکر سب کچھ لے کر آ گیا ہے اور جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب مسکراتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ پوچھا جبریل، ابو بکر سے تو چندہ مانگا، اسلام کو چندے کی ضرورت تھی، مال و دولت کی ضرورت تھی، ابو بکر نے اللہ اور میری محبت میں اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا، جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ جبرائیل تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جبرائیل دنیا کے سردار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، جب سے زمین پر ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں، آج تم بھی ابو بکر کے طریقے پر چلتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہن لو، ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خواہش اور تمنا تھی کہ مال ابو بکر کا ہو، اسلام پر خرچ ہو، پیغمبر کے ہاتھوں خرچ ہو جائے۔ اس کے بعد کتنے مواقع ہیں ابو بکر نے اپنا مال پیش کیا۔ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ داخل ہوتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر جو ہے ٹھہرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جو پلاٹ تھا، 2 یتیموں کا پلاٹ تھا۔ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس پلاٹ کو خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، وہ پلاٹ خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے اپنا سارا مال اسلام کے اوپر لگا دیا، اسلام پر لگا دیا، اسلام پر خرچ کر دیا، اللہ اور اس کی رضا میں اپنا سارا مال لگا دیا۔ یہ پہلی تمنا اور خواہش ابو بکر کی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری تمنا اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری دوسری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ چہرہ نبوت ہو، ابو بکر نبوت کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے تکتا رہے۔ یہ کوئی معمولی چہرہ نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ یہ تو وہ چہرہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی چہرہ نہیں، یہ تو وہ حسین ہے
जिस जैसा हुस्न जमाल वाला इस कायनात में कोई नहीं। ये तो वो जमील है जिस जैसा हुस्न जमाल वाला इस कायनात के अंदर कोई नहीं। बड़े बड़े हसीन व जमील दुनिया के अंदर आए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो हसीन है, हसीन कहा जाता है, लेकिन वो हसीन है, ये हसीनों के सरदार है, वो हसीनों के सरदार हैं, ये कायनात के सरदार हैं। यूसुफ भी बड़े हसीन है। जुलेखा की जब सहेलियों ने ताना दिया, एक गुलाम पर मरती है, एक गुलाम पर मरती है, उस पर जुलेखा ने कहा ठीक है, एक एक छुरी पकड़ा दी और एक एक सेब दे दिया कि इनको काटो और अब इनको खाना शुरू करो। उधर आगे से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजारा। जब जुलेखा की सहेलियों ने नबुव्वत वाले चेहरे को झुकी हुई आंखों के साथ गुजरते हुए देखा, नबुव्वत के चेहरे को देखा जो हुस्न जमाल का पैकर था, उन्होंने इतना लुत्फ आया उस चेहरे को देखते देखते उन्होंने सेब काटने की बजाय अपनी हाथ की उंगलियां काट बैठी, उनको तकलीफ तक महसूस ना हुई। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा है, ये तो हसीनों के सरदार का चेहरा है, ये तो सारी कायनात के सरदार का चेहरा है। ये इतना चेहरा है, यूसुफ को देखने वालियों ने हाथों की उंगलियां कटवा ली, उनको तकलीफ महसूस ना हुई। पैगंबर को देखने वालों ने कभी जो है जनीरा की आंखें निकाली गई, कभी फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, कभी खबाब को तख्तादार पे लटका दिया गया, कभी जो है समैया के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, कभी बिलाल को तपती रेत पर लटा दिया जाता, ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता। उमैया बिन खलफ कहता बिलाल इस्लाम को छोड़ दे, कलमे को छोड़ दे, वरना तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। बिलाल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नबुव्वत वाला वसूहा वाला चेहरा देखा, पैगंबर पर के हाथ कलमा पड़ा, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता हूँ, पैगंबर की रिसालत पर यकीन रखता हूँ। अब बिलाल का जिस्म जो जान जो है जाने आफरी के सपुर्द तो हो सकती है, बिलाल कलमे से इस्लाम से एक इंच भी पीछे नहीं हट सकता। बिलाल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पैगंबर की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकता। यूसुफ के चेहरे को देखने वालियों ने हाथों की उंगलियां कटवा ली, पैगंबर को देखने वालों ने अपने जानों के नजराने पेश कर दिए। वो सारे पैगंबर हसीन है, मैं इसको यूं कहूं, सारे पैगंबर हसीन, अल्लाह के महबूब आसन, सारे पैगंबर जमील, अल्लाह के महबूब अजमल, सारे पैगंबर खूबसूरत, अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा खूबसूरत। यह दुनिया के चांद और सूरज क्या चीज है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त है, 14वीं का चांद जो है रात के वक्त कायनात को मुनव्वर किए हुए है। क्या होता है, अबू हुरैरा आसमान के चांद की तरफ देखते हैं, देखने के बाद क्या कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत चांद है, बड़ा हसीन व जमील चांद है। उधर खुशबू महसूस होती है, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के महबूब जिस रास्ते से गुजरते थे खुशबुएं फैल जाया करती थी। मक्के की चांद की तरफ देखते हैं, यह भी हुस्न जमाल का पैकर है, कायनात में इस जैसा कोई हसीन व जमील नहीं। अबू हुरैरा एक नजर आसमान के चांद की तरफ देखते हैं, दूसरी नजर अब्दुल्ला के चांद की तरफ, आमना के चांद की तरफ, मक्के की चांद की तरफ देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, आखिर के अंदर ये फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं, आसमान के चांद तेरे मुंह पे छाइयां है, मेरे मदनी का चेहरा साफ है, साफ है, साफ है। किसी शायर ने इसको यूं कह दिया, जो चांद से तशबीह देना, क्या यह भी कोई इंसाफ है। आसमान के चांद तेरे मुंह पे छाइयां है, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। ये वो नबुव्वत वाला चेहरा है, ये वो हुस्न जमाल का पैकर चेहरा है, कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा है, जिसकी कसमें कुरान वज़ुहा की सूरत में उठाता है। ये वो चेहरा है जिस जैसा हुस्न जमाल वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं। अबू बकर कहते या रसूलुल्लाह, मेरी तमन्ना और ख्वाहिश दूसरी ये है कि नबुव्वत का चेहरा हो। अबू बकर अपनी निगाहों से नबुव्वत के चेहरे को तकता रहे, देखता रहे। अल्लाह ने अबू बकर की दूसरी ख्वाहिश को भी पूरा किया। कैसे पूरा किया? हिजरत वाली रात अल्लाह के महबूब अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वाह अबू बकर, सारी कायनात के लोग पैगंबर के दर पे
अबू बकर कितनी तू अजमत और शान और मकाम वाला है। आज हिजरत वाली रात सारी कायनात के सरदार तेरे दरवाजे पर हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अबू बकर हिजरत का हुक्म आ गया है, आज हम हिजरत करेंगे। अल्लाह के महबूब और अबू बकर जब निकलते हैं, सफर शुरू होता है। जब सफर शुरू होता है, सफर करते करते जब गारे सौर के करीब बुलंदी की तरफ जाने लगते हैं, अल्लाह के महबूब के खूबसूरत हसीन और जमील तलबे जब पत्थरों के साथ लगते हैं, अबू बकर बर्दाश्त नहीं करते। पैगंबर की मोहब्बत में आकर अबू बकर अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, आप सवारी पर सवार हो जाएं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते अबू बकर अब पहले तो सवारी पर सवार होके आ गए, अब तो बुलंदी की तरफ जाना है कि सवारी पर सवार हो जाऊं। तो अबू बकर अपने कंधे करीब कर लेते हैं, या रसूलल्लाह मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। अल्लाह के महबूब अबू बकर के कंधों पर जो है सवार हो जाते हैं। 6000 फुट की बुलंदी पर, 6000 फुट की बुलंदी तक अबू बकर नबूवत के बोझ को उठाकर, नबूवत को अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अबू बकर की मोहब्बत देखो, पैगंबर के साथ मोहब्बत देखो, इश्क रसूल का दावा किया, उसके बाद उस पर अमली जो है उसको जामा पहनाया। अबू बकर की मोहब्बत देखो, पैगंबर के पाँव में सहाबा कांटा चुभना बर्दाश्त नहीं करते। पैगंबर के खूबसूरत तलवे, पैगंबर के खूबसूरत पाँव, पैगंबर के जो है खूबसूरत पाँव जब उनकी तलियां पत्थरों पर लगती है, अबू बकर बर्दाश्त नहीं करते, अपने कंधों पर बैठाते हैं। 6000 फुट की बुलंदी पर ऊपर चढ़ते 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 गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं अबू बकर या रसूलुल्लाह आप यहाँ ठहरे, गार की सफाई कर लो। अबू बकर अंदर जाते हैं, गारे सौर की सफाई करते हैं, गारे सौर को साफ करते हैं। सफाई करने के बाद गारे सौर के अंदर छोटे छोटे सराख थे, कपड़े के टुकड़े लेकर उन सराखों को बंद कर देते हैं, कहीं कोई मोजी चीज बाहर ना निकल आए और सारी कायनात के सरदार को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। ये अबू बकर की पैगंबर के साथ मोहब्बत का अंदाज था। कपड़े जो है छोटे छोटे टुकड़े करके सराखों के अंदर जो है डाल रहे हैं। कपड़ा खत्म हो गया, एक सराख बाकी रह गया। उस सराख के ऊपर अबू बकर ने अपनी एड़ी रख ली। रखने के बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह गारे सौर की सफाई हो गई है, आप अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह के महबूब अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं अर्ज करते हैं अबू बकर या रसूलल्लाह बड़ा तवील सफर किया, बड़ा सफर किया, आप मेरी गोद के अंदर सर रख कर सो जाएं, आराम कर लें। यह अबू बकर की मोहब्बत का अंदाज था। उधर अबू बकर की एड़ी जो है, जिस सराख के अंदर कपड़ा नहीं रखा गया था, उसके ऊपर अबू बकर की एड़ी है। अबू बकर की गोद के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। मैं इसको यूं कहूं तो बेजना होगा, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अबू बकर की गोद के अंदर कुरान खुला हुआ है। इसको मैं यूं कहूं जैसे रेहल के अंदर कुरान खुला हुआ नजर आता है। आज गारे सौर के अंदर, तन्हाई के अंदर अबू बकर की जो है गोद के अंदर कुरान वाज़े खुला हुआ, चमकता और दमकता हुआ, और जो सारी कायनात से सबसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला आज अबू बकर की गोद के अंदर मौजूद है। हम देखते नहीं है। अबू बकर की तमन्ना और ख्वाहिश ये थी कि नबूवत का चेहरा हो, अबू बकर अपनी आंखों से तकता रहे। अल्लाह ने ये ख्वाहिश भी पूरी की। अबू बकर देख लेना, 3 दिन 3 रातें तुम्हारे पास टाइम है, तन्हाई का वक्त है, नबूवत के चेहरे को तकता जा, लुत्फ उठाता जा, मजे लेता जा। ये कोई मामूली चेहरा तो नहीं था। अबू बकर जो है नबूवत के चेहरे को तकता जा रहा है, तकते जा रहे हैं, मजे लेते जा रहे हैं, अपनी दिल की तमन्ना और हसरतें पूरी करते हुए जा रहे हैं। क्या होता है, जिस सराख के ऊपर अबू बकर ने एड़ी रखी हुई थी, उस सराख के अंदर काला नाग सांप था जो बार बार अबू बकर की एड़ी को जो है छलनी कर रहा था, डंग मार रहा था। जब बात जबत से बाहर होगी, अबू बकर की आंखों से आंसू निकला, नबूवत के चेहरे पर गिरा। कितना कीमती आंसू था, जमीन पर नहीं गिरा, नबूवत के चेहरे पर, वज़ुहा वाले चेहरे पर गिरा। अल्लाह के महबूब बेदार हुए। बेदार होने के बाद पूछा अबू बकर ये रोना कैसा?
یہ آنسو کیسے؟ ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غار ثور کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے سارے سوراخوں کو میں نے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ بند کر دیا تھا، ایک سوراخ باقی تھا، اس کے لیے کپڑا ختم ہو گیا تھا، میں نے اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ لی کہ نبوت کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ محبت کا انداز تھا کہ نبوت کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس سوراخ کے اندر اللہ کے محبوب کالا ناگ ہے، بار بار میری ایڑی کو ڈس رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے، اس نے میری ایڑی کو چھلنی کر دیا، بڑا برداشت کیا، بڑا صبر کیا، لیکن جب بات ضبط سے باہر ہو گئی، میری جو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو کا جو ہے آنسو گر پڑا۔ اللہ کے محبوب اٹھتے ہیں اور اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، فوراً ایڑی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی لعاب دہن نہیں، ہمارا بھی لعاب دہن ہے، ہمارا بھی لعاب دہن ہے، جس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جس کو جو ہے جس کی طرف کوئی نگاہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یہ نبوت کا لعاب دہن ہے، اللہ کے محبوب کا لعاب دہن ہے۔ ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، فوراً ایڑی کا درد ختم ہو گیا۔ علی کی آنکھوں پہ لگا، علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ حضرت جابر کی ہنڈیا کے اندر یہ لعاب دہن گیا، کئی صحابہ نے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی بچ گیا۔ یہ جو آب دہن کی اتنی بڑی برکت ہے، یہ اتنی فضیلت والا، اتنا قیمتی پیغمبر کا لعاب دہن ہے۔ ابو بکر کی دوسری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ چہرہ نبوت کا ہو اور ابو بکر اس کو تکتا رہے، دیکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ غار ثور کے اندر اللہ نے ابو بکر کی یہ تیسری تمنا بھی پوری فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکر کی تیسری تمنا یہ ہے، یا رسول اللہ میری تیسری تمنا یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور زوجہ پیغمبر آپ علیہ السلام کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تمنا بھی ابو بکر کی پوری کی۔ یہی شوال کا مہینہ تھا، شوال کے مہینے کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کی عفیفہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر رخصتی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ تین تمناؤں کا ابو بکر نے اظہار کیا۔ پہلی تمنا یہ مال ابو بکر کا ہو، پیغمبر کے ہاتھوں اسلام پر خرچ ہو جائے، یہ تمنا بھی اللہ نے پوری کی۔ دوسری تمنا یہ ہے نبوت کا چہرہ ہو، ابو بکر اپنی آنکھوں سے تکتا رہے، دوسری تمنا بھی پوری ہوئی۔ تیسری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ بیٹی جو ہے ابو بکر کی ہو، زوجہ آپ کی ہو، تیسری تمنا بھی ابو بکر کی پوری ہوئی۔ اللہ نے ابو بکر کی تینوں تمناؤں کو، تینوں حسرتوں کو، تینوں آرزوؤں کو دنیا کے اندر پورا کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات کی عفیفہ، مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بطن سے جو آپ کی اولاد پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک آپ کی بیوی ماریہ قبطیہ، جن کے ہاں اللہ نے ابراہیم پیدا کیے، جن کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے، چند دنوں کے بعد جن کی وفات ہو گئی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کی کنواری بیوی تھی، اور ابو بکر کی یہ بیٹی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ 3 دن ایک نورانی فرشتہ میرے سامنے آتا رہا، آپ کی تصویر مجھے دکھاتا رہا اور کہتا تھا اے اللہ کے محبوب آپ کی جو ہے بیوی بننے والی یہ ہے، عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ تو اس کو جو ہے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور امر کے ساتھ مکمل کرے گا۔ اس انداز میں شوال کے مہینے کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی کا نکاح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر جو ہے رخصتی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر سب سے پہلی حافظہ تھی،
اسلام کے اندر سب سے پہلے جس نے قرآن کو حفظ کیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر کی بیٹی ہے۔ پھر اللہ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی، اتنا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائی، اتنی ذہانت عطا فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ جنت کے اندر گھوڑے ہوں گے لیکن ان کے پر نہیں ہوں گے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے، اتنا حاضر دماغی تھی۔ اللہ کے محبوب نے جب دنیا سے انتقال کیا، رحلت ہوئی، اس کے بعد 48 سال تک زندہ رہی اور صحابہ کرام کی بہت سارے مسائل کے اندر رہنمائی فرمایا کرتی تھی، بہت بڑی اسلام کی حافظہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، اور اسلامی امور پر، اسلامی مسائل پر ان کو جو ہے بہت تجربہ تھا، بہت جو ہے ان کا تجربہ تھا۔ بڑے بڑے مسائل کے اندر صحابہ کی جماعت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر پوچھتے کہ امی بتا اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اللہ کے محبوب کے جو ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی جن کے ساتھ اللہ کے محبوب کو بہت محبت تھی، محبت کا نرالا ہی انداز تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ مسواک پکڑتی ہے، مسواک کو اپنے منہ کے اندر کرتی ہے، مسواک کرنے کے بعد اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مجھے بھی مسواک دو، میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ پانی کی طرف جاتی ہے کہ اس کو دھو کر صاف کر کے اللہ کے محبوب کو میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے صاف فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کو صاف کرنے کی دھونے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی مجھے دو۔ جس جگہ سے عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں کو مسواک کیا تھا اسی جگہ سے ساری کائنات کے سردار مسواک کرتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ برتن میں سے جب پانی پیا کرتی تھی، جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، اللہ کے محبوب بھی وہاں پر سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کو اتنی زیادہ محبت اور پیار تھا، پیار کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اکثر پیار و محبت میں اپنی پیاری بیوی کائنات کی عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے، طیبہ طاہرہ کہا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کی اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ محبت کا ایک نرالا ہی انداز تھا۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی جو ہے ان کی مسواک کو جو ہے چوستے ہیں، اپنے دانتوں میں لگاتے ہیں، کبھی برتن میں کی اس جگہ پر منہ لگا کر پانی پیتے ہیں جس جگہ ان کی بیوی نے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ ایک دن ماں بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، کون ماں بیٹی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہی عظمت والی ہے۔ فاطمہ بھی بڑی عظمت والی، عائشہ صدیقہ بھی بڑی عظمت والی۔ ایک دن آپس کے اندر بات ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امی جان، جو ہے میری عظمت مقام اور شان آپ سے زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، ساری کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں، اور آپ جو ہے میرے باپ کے غلام ابو بکر صدیق کی تم بیٹی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ جو اتنی ذہین حاضر دماغ تھی، بہت بڑی عالمہ اور حافظہ تھی، فرمایا بیٹی ٹھیک ہے تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، میں محمد کے غلام ابو بکر کی جو ہے بیٹی ہوں، تمہاری بیٹی بہت عظمت ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن بیویاں جنت میں اپنے خاوندوں کے ساتھ ہوں گی، میں جو ہے کل جنت میں جو ہے جاؤں گی، جب جنت میں جاؤں گی ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ کے ساتھ میرا مقام جنت کے اندر ہوگا۔ بیٹی تمہاری شادی علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہوا ہے، تم جو ہے جنت میں علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہوگی۔ اس انداز میں ماں بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی ذہانت، اتنا تقوی،
इतनी परहेजगार, इतनी सखावत करने वाली औरत कि उनके पास लाखों की तादाद के अंदर माल आता है। सुबह से रोजे की हालत में शुरू होती है, शाम तक सारा का सारा माल गरीबों और मस्किनों के अंदर तकसीम कर देती है। जब अफ्तारी का वक्त आता है, जो गुलाम थी, खिदमत गुजार थी, उससे कहा कि ले आओ, अफ्तारी का वक्त आ गया, कोई खाने के लिए है। जैतून का तेल और एक रोटी जो है सामने लाकर रख दी। उस पर खिदमतकार औरत ने कहा, यह अच्छा ना होता कि आप कुछ पैसे, एक दिरहम ही बचा लेती, उससे गोश्त खरीदा जाता और आज हम भी गोश्त के साथ जो है अफ्तारी कर लेते। उस पर फरमाया, तुम पहले बता देती, जब सुबह से शाम तक अल्लाह के रास्ते में मैं खर्च किए जा रही थी, गरीबों और जो है बेआसरा और यतीम लोगों को मैं दे रही थी, उस वक्त बता देती। ये सहाबा कराम की सखावत थी। उन जैसा सखी कौन हो सकता है, उन जैसा पैगंबर के तरीके पर चलने वाला कौन हो सकता है कि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर की बेटी है, पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा है। उन पर इल्ज़ाम लगा, वाक़या इफ़्क पेश आया कि जिसकी फिर बारात के अंदर सूरह नूर की आयात नाज़िल हुई। एक गज़वा के अंदर अल्लाह के महबूब जो है जब गज़वा के अंदर जाया करते थे, कूड़ा डाला करते थे, जिस बीवी के नाम का कूड़ा निकलता था उसको गज़वा में साथ लेकर जाया करते थे। गज़वा से वापस आने लगे, सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रफ़ा हाजत के लिए जंगल की तरफ गई। वहाँ उनका हार गुम हो गया। हार को तलाश करते करते देर हो गई। काफिला जो था वापस आ गया। जब काफिला वापस आ गया, सैयदा आयशा जिस जगह काफिले का पड़ाव था वहाँ बैठ जाती है, अपने ऊपर जो है चादर ओढ़ लेती है। जब चादर ओढ़ लेती है, पीछे एक सहाबी की ड्यूटी हुआ करती थी कि काफिले वालों में से कोई पीछे रह जाए, रास्ता भूल जाए या किसी का कोई साजो सामान गिर जाए, उसको उठाकर लेकर आना। जब आकर सहाबी ने कर देखा, मोमिनों की माँ, पैगंबर की ज़ौजा, हमारी माँ यहाँ मौजूद है, ज़बान से बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेदार होती हैं। उसके बाद मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं। सैयदा आयशा सदीका घोड़े पर सवार, ऊँट पर सवार हो जाती है। वो मुहार को पकड़ता है, लेकर जो है काफिले की तरफ आ रहे हैं। एक मुनाफिक, उस वक़्त का सबसे बड़ा मुनाफिक, जिसको रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी कहा जाता है, उसने देखा पैगंबर की जो है ज़ौजा है, अबू बकर की बेटी है, इस्लाम की सारी शान व शौकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अबू बकर की वजह से है। क्यों ना हो इनके अंदर आपस में लड़ाई डाल दूं, इनके अंदर तनाज़ा डाल दूं, इन पर जो है इन पर बहतान लगा दूं, इनको जो है बुरा भला कह लूं। जिस अंदाज में हमारे माहौल माशरे के अंदर आज भी लोग चाहते हैं किसी को जो है किसी के साथ मुखालफत हो जाए, उसको नाकाम करने की खातर जो है तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहताने लगाते हैं, झूठ बांधते हैं। लेकिन ये दुनिया की ताकत किसी का कुछ नहीं कर सकती। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। लिल्लाहिल अमर, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है, बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही की है। अगर पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, किसी को जलीलो खार करना चाहें, अल्लाह उसको इज्जत देना चाहे, दुनिया वाले बेबस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, ज़मीनों आसमानों का बनाने वाला अल्लाह है। उस वक़्त के सबसे बड़े मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा, मुखालफत थी इस्लाम और कुफर की, आपस के अंदर जो है लड़ाई झगड़े थे, उसने जो है बहतान लगा दी और मदीना तैयबा के अंदर ये मशहूर कर दिया तो तोहमत लगा दी। जब तोहमत लगी, अल्लाह के महबूब परेशान हो जाते हैं। सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान हो जाती हैं, अबू बकर परेशान हो जाते हैं, सहाबा परेशान हो जाते हैं। एक दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया, सहाबा से मशवरा किया कि सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मुशरिकीन मक्का ने, मुनाफिकीन मक्का ने बहुत बड़ी बहतान बांधी है, आप मशवरा दें। उस पर सहाबा ने तरह तरह के मशवरे दिए। जब फारूक आज़म के मशवरा देने की बात आई, फारूक आज़म ने कहा, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या आयशा सदीका के साथ आपने निकाह खुद किया था या अल्लाह ने आपका निकाह किया था?
उस पर सारी कायनात के सरदार ने इरशाद फरमाया, उमर, अल्लाह ने अपने अमर और हुक्म और इरादे से मेरा निकाह जो है आयशा के साथ किया था, और एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास 3 दिन तक आता रहा, वो आयशा की तस्वीर मुझे दिखाता रहा कि ये आपकी होने वाली बीवी है, ये बनने वाली बीवी है। उस पर फारूक आज़म ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बहतान अजीम है, ये तो बहुत बड़ी बहतान है, मैं इसको नहीं मानता। उसके बाद क्या होता है, अबू बकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, घर के अंदर कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहाए जा रहे हैं। उम्मे रोमान अबू बकर की बीवी, वो भी आंखों से आंसू बहाए जा रही है। सैयदा आयशा सदीका, वो भी तोहमत का सुनकर आंखों से आंसू बहाए जा रही है। अल्लाह के महबूब जो है वो मिल नहीं रहे, अल्लाह के महबूब आयशा के पास नहीं आते, हाल अहवाल नहीं पूछते, और इस वजह से सारे के सारे सहाबा परेशान हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब जो है जुल्म और सितम की इंतहा हो जाती है, ये बहतान जो थी, एक जो है बहतान ही थी, सरासर झूठ था, धोखा और फरेब था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सूरत नूर की आयात नाज़िल फरमाई। उसके बाद अल्लाह के महबूब पर जब ये आयात नाज़िल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो है मुनाफिकीन की तरफ सरासर जो है बहतान है, बहतान अजीम है। कि कैसी बहतान अजीम है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कायनात की अफीफ़ा, मोमिनों की माँ, और सैयदा आयशा सदीका, जिसकी अजमत, मकाम और शान ये है। सैयदना मरियम पर बहतान लगे, एक मासूम बच्चा उनकी गवाही दे। सैयदना यूसुफ पर बहतान लगे, मासूम बच्चा उनकी गवाही दे। मूसा पर बहतान लगे, ज़मीन वाले, फर्श वाले उनकी जो है गवाही दें। तब सैयदा आयशा पर बहतान लगी, तोहमत लगी, अर्श वाले ने सूरह नूर की आयात नाज़िल फरमाकर सैयदा आयशा के हक में गवाही दी। आयशा जो है पाक और साफ है। अल्लाह तो अपने नबी और रसूल पर गंदी मक्खी को बैठना बर्दाश्त नहीं करता। जो गलत बीवी पैगंबर के अक़द और निकाह में कैसे आ सकती है। तो दोस्तों, ये सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत और शान के अंदर सूरह नूर की आयात नाज़िल होती हैं। उसके बाद सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस्लाम की सबसे पहली हाफ़िज़ा थी, आलिमा थी, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की पैगंबर की रहलत के बाद 48 साल तक जिंदा रही, और 48 साल तक जो है सहाबा की दीन के मसाइल के अंदर रहनुमाई करती रही। एक वक़्त था, उम्मे मखतूम नबीना सहाबी अल्लाह के महबूब के घर तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के महबूब से मिलने के लिए आते हैं। अल्लाह के महबूब घर के अंदर तशरीफ़ फरमा नहीं थे। उसके बाद क्या देखते हैं, पैगंबर की बीवियां घर के अंदर मौजूद थी। उनके सर उन्होंने जो है पर्दा ना किया उन नबीना सहाबी से। उसके बाद अल्लाह के महबूब ने पूछा कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। उस पर हमारी माओ ने अर्ज़ किया, मोमिनों की माओ ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, वो तो नबीना है, उसको तो नज़र नहीं आता। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, उसको तो नज़र नहीं आता, तुम्हें तो नज़र आता है। उसके बाद सैयदा आयशा सदीका और अज़वाज मुतहरात ने पर्दे का इस अंदाज में एहतमाम किया। हुजरा आयशा के अंदर अल्लाह के महबूब का रोज़ा मुबारक है, उसके साथ अबू बकर की जो है कब्र मुबारक है। अल्लाह के महबूब भी वहाँ दफन है, अबू बकर भी वहाँ दफन है। सैयदा आयशा सदीका के हुजरा के अंदर बाज़ का जब साथ से दुपट्टा उतर जाता, हालांकि दोनों महरम है, एक बाप है, एक जो है खामद है, दोनों से पर्दा ज़रूरी नहीं, लेकिन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला ने इस अंदाज में पर्दे का एहतमाम किया कि सर से जब दुपट्टा सिरकता फौरन उसको सर के ऊपर ले लेती कि यहाँ जो है गैर जो है अबू बकर और मेरे खामद की कब्र है। उसके बाद क्या होता है, रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को 17 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। उसके बाद जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देते हैं, जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देते हैं। ये सैयदा आयशा के लिए जगह तो और हुजरा आयशा के अंदर मौजूद थी, लेकिन फारूक आज़म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पेश की।
फारूक आज़म को जब मसल्ला रसूल पर खंजर लगा, उसके बाद कहा कि बेटा अब्दुल्ला जाओ पूछ कर आओ मियाँ आयशा से, मैं भी अपने दोस्तों के साथ रोज़ा रसूल के अंदर दफन होना चाहता हूँ, अगर इजाज़त मिल जाए वहाँ मुझे दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जब अब्दुल्ला अम्मी आयशा के पास जाते हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आंखों से आंसू बह रहे थे कि फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरबा मिल के हुक्मरान, जन के दौरे हुकूमत के अंदर शेर और बकरी एक ही रेवड़ के अंदर चरा करते थे, इतनी अजमत वाले, उनको जो है खंजर मारा गया, शहीद किया गया। जब बात की उस पर अम्मी आयशा ने कहा ठीक है, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मेरे खामद भी जहाँ दफन है, मेरा बाप भी जहाँ दफन है, मैं भी उनके साथ दफन होना चाहती थी, लेकिन अगर फारूक आज़म इसकी तमन्ना और ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा हकदार हैं, उनको इजाज़त है। उस पर फारूक आज़म को जब आकर बताया बेटे ने, उस पर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि बेटा नहीं नहीं नहीं, जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा पढ़ लो, उसके बाद रोज़ा रसूल के बाहर ले जाकर रख देना, अम्मी आयशा से इजाज़त मांगना, अगर इजाज़त मिले वहाँ दफन कर देना, अगर इजाज़त ना मिले जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना। इतने बड़े जो है आला अखलाक की मालिका सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है सब कुछ कुर्बान करती है। सहाबा की आपस के अंदर मोहब्बत को देखो, सहाबा के प्यार को देखो, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहाबा के साथ मोहब्बत और आला अखलाक, आला हुस्न ज़न को देखो। अपने लिए जो कब्र की रोज़ा रसूल के अंदर हुजरा आयशा के अंदर जो जगह रखी थी, फारूक आज़म के लिए जो है वक्फ कर देती हैं। जब फारूक आज़म इंतकाल करके जाते हैं, जनाजा होता है, रोज़ा रसूल के बाहर रख दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरा आयशा से बाहर निकल जाती है, सहाबा अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ जो है कब्र खोदते हैं। कब्र खोदने के बाद जब दफन कर रहे थे, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा थे, अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे और फरमा रहे थे कि मुझे पता था कि इस जगह कोई हस्ती आ सकती है, फारूक आज़म ही आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है, अल्लाह के महबूब की ज़बानी बहुत बार मैंने सुना, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर बैठे, मैं अबू बकर और उमर खड़े हुए, मैं अबू बकर और उमर पहाड़ पर चढ़े, मैं अबू बकर और उमर पहाड़ से नीचे उतरे। अल्लाह के महबूब की ज़बानी अबू बकर और उमर और इनके तराने अल्लाह के महबूब की ज़बान पर थे। मुझे पता था रोज़ा रसूल के अंदर अल्लाह के महबूब के साथ अगर आ सकते हैं, अबू बकर और उमर ही आ सकते हैं। ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा है, घर है जहाँ जो है उन्होंने अपने लिए जगह रखी थी। लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत, अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान, उनके लिए आला अखलाक, आला हुस्न अखलाक की मिसाल कायम करते हुए उनके लिए जो है जगह दे दी कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मैं यहाँ दफन होना चाहती थी, लेकिन जो है ये अगर फारूक आज़म ख्वाहिशमंद हैं तो वो मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। रमज़ानुल मुबारक के 17 तारीख को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, जन्नतुल बकी के अंदर उनकी कब्र बनती है। और इस शवाल के महीने के अंदर, ये जो शवाल का महीना है, इस महीने के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, कायनात की आफीफ़ा, मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह और रुखसती होती है। ये शवाल का महीना है। इसके मुतल्लिक़ एक हदीस सुन ले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रख लिए, वो बंदा इस तरह है गोया उस बंदे ने सारे साल के अंदर जो है रोज़े रखे हैं। उसके बाद उलमा ने लिखा है, यह ज़रूरी नहीं शवाल का चांद नजर आए, ईद का दिन गुजरे,
اس کے بعد ہی روزے رکھنے ہیں، نہیں نہیں نہیں، پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں، اکٹھے رکھ لو، وقفے وقفے سے رکھ لو، جب تک شوال کا چاند باقی ہے 6 روزوں کو تم پورا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب کو تمہارے نامہ اعمال کا